recording. So today's topic is logarithm of a complex number. It is again the part of a module that is complex numbers. So in this topic, what we'll do, we'll learn how to obtain logarithm of complex numbers and then solve problem based on this, right? So first of all, what do you mean by logarithm of a complex number? So let z is nothing but log of x plus iy, and also x is r cos theta and y is r sin theta, so that r becomes r is under root x square plus y square, and theta is nothing but tan inverse of y upon x, right? And therefore using this r and theta, this z become log of r into cos theta plus I into r into sin theta. Now you can take out r common, so this will become log of r into cos theta plus I sin theta, right? Again cos theta plus I sin theta become log r as it is. Cos theta plus I sin theta is e raised to I theta, right? You can bracket them, right? But log m into n is what? Log of m plus log n. So this will become log r plus log of e raised to I theta. But log of e raised to I theta is nothing but I theta. And therefore, what will happen? This will become log z is equal to log r plus I into theta. This is one formula. ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपको मिला है. z की वैल्यू है log r plus I into theta. ये भी आपको याद रखना होगा. Call this equation number 1. Again और आगे जाते हैं. That is nothing but z तो हमने log of x plus i y लिया था, तो यहाँ पे थोड़ा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ फॉर्मूला को. log of x plus i y is equal to log r plus I into theta, right? This is your first formula. Again इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. log of x plus i y is equal to log r is what? This value, log of x square plus y square raised to 1/2. log of x raised to m का फॉर्मूला आपको पता है. log x raised to m होता है m into log x, right? तो यहाँ पे जो 1/2 रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पे. so this will be 1/2 log of x square plus y square. ये log r की वैल्यू आई है, क्योंकि r की वैल्यू है अंडर रूट x square plus y square. अंडर रूट का मतलब होता है रेज टू 1/2, तो वो 1/2 यहाँ पे आ गया और log of x square plus y square बन गया इस फॉर्मूला से. प्लस साइन i इंटू थीटा, बट थीटा की वैल्यू यहाँ पे है दी हुई, प्लस i इंटू टैन इनवर्स ऑफ y अपॉन x, राइट? सो ये एक और फॉर्मूला आपको मिल गया log of x plus i y के लिए. इसको भी हम लोग बॉक्स बनाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2. ऑलराइट, अब आते हैं दिस. ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log of x plus i y. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log of x plus i y. ठीक है, इसका जो जनरल वैल्यू है उसको कैपिटल L से डिनोट किया जाएगा. सो द जनरल वैल्यू ऑफ log of x plus i y, इसका जो जनरल वैल्यू है log of x plus y y का, is given by
कैपिटल log of x plus iy equal to 2n pi I plus log of x plus iy। ये हुआ आपका फॉर्मूला नंबर 3। एक और फॉर्मूला है जो मैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूं। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। इसको बोला जाता है जनरल वैल्यू ऑफ log of x plus iy। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, log of x plus iy, ये भी जनरल वैल्यू का ही फॉर्मूला है। log x plus iy is nothing but log of r plus I into 2n pi plus theta। Call this equation number 4। राइट, अब इसमें कुछ करोलरी है। फर्स्ट करोलरी है कि if we put x is equal to 0 and y is equal to 1, if we put x 0 and y is equal to 1, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, देन 2 implies log of I 0 plus I, यानी log of I is equal to I into pi by 2। ये कहां से है, मैं लेट मी गो बैक टू द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 0 plus I into 1। सो log I equal to 1/2 log of 1 square, that is log 1 is 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस I tan इनवर्स ऑफ 1/0, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। इंफिनिटी कितना होता है, tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाय 2, इसीलिए आपको टर्म मिली है I into पाई बाय 2। आया सबको समझ में बॉयज? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है अगेन, इसी को अगर मैं log of I यानी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए करता हूं तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट यहाँ पे आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाय 2, 2n पाई प्लस पाई बाय 2। राइट, ये हुआ आपका फॉर्मूला नंबर 5 and 6। कॉल दिस 5, कॉल दिस 6। ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है, अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है तो ठीक है। सिमिलरली log of I raised to I raised to I, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट माइनस पाई बाय 2। कैसे आया ये log I raised to I? इसका क्या मतलब है, log I raised to I मतलब I into log I into log I, बट I log I क्या होता है, I पाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I पाई बाय 2 को I से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन रहा है I स्क्वायर मतलब -1, तो माइनस पाई बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा। राइट, सो एक और फॉर्मूला आपको मिलेगा, शॉर्टकट फॉर्मूलाज ऑल्सो। I raised to I क्या हो जाएगा, I raised to I मतलब e का पावर लेना पड़ेगा, e to the e raised to log of something is that something, तो आप क्या करेंगे, e में raised to पावर करेंगे, तो ये बन जाएगा e raised to माइनस पाई बाय 2। सो इस तरह से आपके फॉर्मूलाज इवेल्युएट हो रहे हैं। ठीक है, सब फॉर्मूलाज ही हैं। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन ऑफ log of I raised to I is equal to -1, because why, log of I raised to I होता है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 बनना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2, बिकॉज log I raised to I is माइनस पाई बाय 2, that will become -1। राइट, ऑल्सो इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन ऑफ I into log of I, दोनों भी सेम है एक्चुअल में, दोनों का भी सेम वैल्यू आएगा, बस इस I को यहाँ पे लिख दिया है, तो ये भी -1 हो जाएगा। सिमिलरली cos of log of I raised to I is equal to 0, और क्योंकि cos पाई बाय 2 होता है 0,
तो ये हो जाएगा cos I into log of I, ये भी 0 होगा, राइट। मतलब वही पिछला जो कॉरोलरी है उसमें जो फॉर्मूला थे वही यूज किए। कॉरोलरी नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारी, इक्वेशन नंबर 4, अगर उसमें मैं वैल्यू r की पुट करता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन 4, पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन 4, फोर्थ इक्वेशन पे मैं जाता हूं। पहले फोर्थ इक्वेशन है मेरी ये वाली, इसमें अगर मैं r की वैल्यू पुट करता हूं तो ये आती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू 1/2, तो बनेगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट log ऑफ, ये प्रिंसिपल वैल्यू का है वैल्यू, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस I इंटू 2n पाई प्लस थीटा, राइट। तो ये एक फॉर्मूला आपको आ गया है, इसको फॉर्मूला को बोल दो फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7। अगर इसी में मैं अगर x माइनस आई वाई कर दूंगा, एक मिनट है, इसको पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं। तो यहाँ पे हो गया आपका फॉर्मूला। अब आते हैं नेक्स्ट कॉरोलरी नंबर 3, यहाँ पे अगर मैं सेकेंड जो फॉर्मूला है हमारा उसमें अगर x के i का साइन चेंज कर लेता हूं, चेंजिंग साइन ऑफ i इन 2, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस i इंटू tan इनवर्स ऑफ y upon x. All this equation number 8. So these are all formulas used and will be used for solving the examples on logarithm of a complex number. Is it clear to everyone?